নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ডিডি ত্রিপুরা আর ডিডি ত্রিপুরার বিশেষ হেলথ টক শো হ্যালো সুস্বাস্থ্যে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, আপনারা সবাই জানেন যে আপনাদের সবাইকে আমরা বিভিন্ন রোগ শোক নিয়ে সচেতন রাখি এই অনুষ্ঠানে। আমরা চাই সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। একটা কথা হচ্ছে যে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গই কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আমরা সবাই জানি যতদিন হৃৎপিণ্ড সচল আছে ততদিন আমরা বেঁচে আছি, ভালো আছি। কিন্তু বন্ধুরা, সমস্যা হয় হৃৎপিণ্ডেও মাঝে মধ্যে। WHO একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বিগত 20 বছর ধরে পৃথিবীতে প্রতি বছর সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয় বিভিন্ন হার্ট ডিজিজে। প্রতি বছর গোটা পৃথিবীতে প্রায় 1,80,00,000 মানুষের মৃত্যু হয় হার্ট ডিজিজে। এটা কিন্তু ভয়ানক ব্যাপার। ভারতবর্ষের চিত্রটাও কিন্তু একই রকম। লিডিং কজ অফ ডেথ হার্ট ডিজিজ ভারতবর্ষেও। কেনই হার্টের সমস্যা হয়, কিভাবে আমরা হার্ট ভালো রাখতে পারি, আমাদের এই যে হৃৎপিণ্ড সেটাকে কিভাবে আমরা সচল রাখতে পারি, ভালো রাখতে পারি দিনের পর দিন, সেসব নানান বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্যে আজ আমাদের স্টুডিওতে যিনি রয়েছেন উনি ভারতবর্ষের তথা দেশের এই প্রান্তের এবং রাজ্যের একজন বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট। আপনাদের অনেকেরই পরিচিত, আপনারা অনেকেই চেনেন ওনাকে। ডক্টর হেমন্ত কুমার গর্গ, কার্ডিওলজিস্ট, ILS হসপিটালস, আগরতলা। নমস্তে স্যার। নমস্কার স্যার, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো টুডে। আর দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের জানিয়ে রাখি ডক্টর হেমন্ত কুমার গর্গ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আজ। তো স্যার বাংলা বোঝেন, আমাদের অনুষ্ঠান বাংলায় করি, আপনারা সবাই জানেন। উনি কিন্তু বাংলা বোঝেন, কিন্তু কথা উনি হিন্দিতে বলবেন। তো হিন্দি এবং ইংলিশে হয়তো আমাদের কথোপকথন হবে। আপনারা যারা অনুষ্ঠান দেখছেন, যদি আপনাদের কোনো রকম প্রশ্ন থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে স্যারের কাছে, হেমন্ত কুমার গর্গের কাছে, তাহলে আপনারা সরাসরি আমাদের স্টুডিওতে ফোন করতে পারেন। আপনারা বাংলাতে প্রশ্ন করতে পারেন, প্রয়োজনে হিন্দিতে প্রশ্ন করতে পারেন স্যারকে। सर, ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हार्ट डिजीज है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी और हमारे स्टेट में भी, क्यों है सर? देखिए, हार्ट अटैक बेसिकली, हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक का मतलब हार्ट के ऊपर अटैक हो गया। ओके। हार्ट मसल्स का बना है। मसल्स को काम करने के लिए ब्लड चाहिए, ब्लड से ऑक्सीजन चाहिए। बॉडी के हर मसल्स को, बॉडी के हर ऑर्गन को काम करने के लिए ब्लड चाहिए। ब्लड के थ्रू उसको ऑक्सीजन मिलता है। जैसे हार्ट मसल्स का है, वो पंप करता है, लगातार ऐसे पंप करता है, वो मसल्स का बना हुआ है। उस मसल्स के ऊपर खून की आर्टरी रहती है, ब्लड की आर्टरीज रहती हैं, जो उसको लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करती रहती है जब भी हार्ट पंप करता है। उसके ऊपर स्पेसिफिकली 3 आर्टरी रहता है जो मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। अचानक से कोई आर्टरी में रुकावट आ जाए, अच्छा, तो जिस तरह मान लो आप उंगली है, उस उंगली को आप बंद कर दीजिए, अचानक से ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, तो उंगली में बहुत तेज दर्द होगा, ठीक, और धीरे धीरे उंगली काम करना कम कर देगा। अच्छा। ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो फिर ब्लैक होने लगेगा, मतलब काम करना कम कर देगा। इसी तरह हार्ट जब काम कर रहा है, हार्ट के ऊपर जो मसल्स को जो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रही है, जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिल रहा है मसल्स को, अचानक से कोई रुकावट हो जाए तो हार्ट के उस पोर्शन को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई उस मसल्स की रुक जाएगी और वो उस वजह से सीवियर पेन होगा और हार्ट अचानक से काम करना, वो पोर्शन अचानक से बंद कर देगा। तो डिपेंडिंग ऑन दी सीवियरिटी, आपकी आर्टरी कहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है, कौन से पोर्शन में ब्लॉकेज हुआ है, कौन सी आर्टरी ब्लॉकेज हुआ है, तो उस हिसाब से हार्ट अटैक की सीवियरिटी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कई पेशेंट बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला हार्ट अटैक हुआ है। कई पेशेंट अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते, घर में ही सडनली 1 मिनट में कोलैप्स कर जाते हैं। ये बड़ा सा टॉपिक है ये, जो कैसे हमको पता चलेगा कि हार्ट अटैक आया हुआ है और नहीं। एक फोन है, एक दोस्त है हम लोगों के साथ। हेलो হ্যালো দর্শক বন্ধু, আপনাকে টিভি সেট থেকে একটু দূরে সরে আসতে হবে, নয়তো আপনি কিন্তু কথা বলতে পারবেন না, আপনার কথা আমরা শুনতেও পারবো না। বলুন, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? चलून अपने संगे थाकुन, अपने संगे थाकुन। सर, ये तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हार्ट डिजीज हो गया। हार्ट डिजीज में बहुत सारे डिजीज होते हैं, मगर हार्ट अटैक ज्यादा होता है, इसलिए सर लोगों की मौत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब हार्ट अटैक हो गया तो ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, जिस तरह मान लो कभी मैंने आपको बताया हार्ट अटैक इसलिए होता है कि खून की आर्टरी में ब्लड सप्लाई की रुकावट हो गई है। ठीक। अब कौन सी आर्टरी में कहाँ पर रुकावट हुआ है, उस पे हार्ट अटैक की सीवियरिटी डिपेंड करता है। अच्छा, मैं यही बोलना चाह रहा था। कई पेशेंट आपने बोले होंगे, हम ईसीजी देख के बोलते हैं देखो आपको हार्ट अटैक हुआ है, पेशेंट बोलता है मेरे को तो कुछ दिक्कत ही नहीं हो रहा। ओके। लेकिन कई पेशेंट होते हैं कि
घर पे ही एक्सपायर हो जाते हैं, सोते सोते पता ही नहीं चलता। अच्छा, बड़ा सा। हाँ, बड़ा सा मासिव हार्ट अटैक उस पर डिपेंड करता है कि आपको हार्ट अटैक की सीवियरिटी का है, कि कहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है और किस आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ और उस आर्टरी में कहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मान लो आप हाथ को यहाँ से बंद कर दीजिए तो पूरे हाथ की ब्लड सप्लाई जाएगी। ओके। और यहाँ पे बंद करेंगे सिर्फ तो सिर्फ उंगली इतने तक भी जाएगा। तो जहाँ से हार्ट की आर्टरी की शुरुआत होती है, अगर वहीं पे ब्लॉकेज हो जाएगा ये तो बड़ा सा हो गया। मासिव हार्ट अटैक होगा। पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा और अगर सो रहा है तो सुबह डेड बॉडी मिलेगी। ओके। और अगर बहुत डिस्टल में रुकावट हुआ है तो पेशेंट को ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। वो बोलेगा कि मेरे को हार्ट अटैक हुआ है, मेरे को पता ही नहीं चला। पता ही नहीं तो चला। हार्ट अटैक दर्द भी कम हुआ होगा तब। हाँ, दर्द भी कम होगा। अच्छा, ठीक है सर। ये आप मुझे पहले ये बताइए कि इंडिया में जैसे कि वर्ल्ड वाइड में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है हार्ट डिजीज के चलते। हार्ट अटैक के तो लिए इंडिया में भी सेम? हाँ, सेम। वो तो सिनेरियो सब सेम ही है। सिनेरियो सेम है। मगर ये क्यों है कि हार्ट डिजीज ज्यादा होते हैं? मतलब देखिए, अब बात क्या है कि सबसे बड़ा रीजन तो वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरह जो फॉर एग्जांपल मैं अगरतला का यहाँ पे मैं 2 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, 50% ऑफ हार्ट अटैक जो इमरजेंसी में आते हैं उनका एज ग्रुप है 40 to 50 ईयर्स। मतलब 40 से 50 एज ग्रुप में 50% हार्ट अटैक इस एज ग्रुप के हैं। ओके। ये वेस्टर्न कंट्री से 10 साल अर्ली है। मतलब इंडियंस में वेस्टर्न कंट्रीज से 10 साल पहले हार्ट अटैक होता है। वेस्टर्न में 50 to 60 में आते हैं। हाँ, मतलब 50% मेजर हार्ट अटैक 50 to 60 ईयर्स में, लेकिन इंडिया में 40 to 50 42 है। मोस्टली 45। मतलब ये अगर देखा जाए 100 हार्ट अटैक के पेशेंट आए तो 50 पेशेंट आपको इसी एज ग्रुप में मिलेंगे। अच्छा। तो इंडिया में बाकी कंट्री से, मतलब वेस्टर्न कंट्री से 10 ईयर्स हम लोग अहेड हैं, जल्दी हैं। ओके। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक रीजन। जेनेटिक। आपने कितने मतलब कितने पेशेंट से मिले होंगे, वो बोलते हैं हमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, कुछ खाया भी नहीं है, फिर भी हमें हार्ट अटैक हो गया। अच्छा। और कितने, अब फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी में लगा लीजिए, बचपन से ही मटन पोर्क सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी 90 साल तक जिंदा है। ओके। तो मतलब मेन जो हार्ट अटैक का जो मेन है एज, मेन कारण है जेनेटिक। इंडिया में जेनेटिक की वजह से सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मतलब जल्दी होता है। दूसरा, जो वेस्टर्न कंट्रीज की हाइट हेल्थ है, इंडियंस की हाइट हेल्थ बहुत छोटी है। आपने देखा होगा कंपेरेटिवली वेस्टर्न कंट्रीज से। हाइट हेल्थ मतलब अब लंबाई। अब जिस तरह मान लो हार्ट के ऊपर जो आर्टरी है। सर मैं फिर से आऊंगा आपके पास। देखते हैं कौन है। हेलो हेलो। নমস্কার। ডাক্তার শুনছেন? কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন বলুন। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে। বলুন কি জানতে চাইছেন? আমি বলছি আমার সুগার, প্রেশার হ্যাঁ, আর ওই ক্রিয়েটিনিন একটু বাড়া আছে। প্রেশার আর ক্রিয়েটিনিন বাড়া আছে আপনার? সুগারও আছে। সুগারও আছে। আচ্ছা, আপনার বয়সটা কত একবার বলুন। আমার বয়স হচ্ছে 45। 45। ওকে। হ্যাঁ, এবার কি জানতে চাইছেন আপনি? আমি বলছি কথাগুলো কেটে গেল, আপনি একটু সরে আসুন, আবার বলুন। হ্যালো। আমি বলছি আমি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে আপনি কি জানতে চাইছেন সেটা বলুন। আপনার সুগার, ক্রিয়েটিনিন আর প্রেশারটা একটু বেড়ে আছে, এটা আমি শুনতে পেয়েছি। হ্যাঁ, জন্য আমি খাওয়া দাওয়া কিছু করবো আর কিছু করবো না। ওকে, আপনি সঙ্গে থাকুন, দর্শক বন্ধু আপনাদের জানিয়ে রাখি, আজ কিন্তু আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন উনি একজন বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট, হার্টের ডাক্তার। আর আপনি যেটা বলছিলেন ক্রিয়েটিনিনের কথা, সুগারের কথা, নিশ্চয়ই স্যার বলবেন, স্যারের কাছে যাব। তবে দর্শক বন্ধু আপনারা যারা ফোন করছেন, যারা এই মুহূর্তে টিভির সামনে রয়েছেন, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, আপনারা যখন ফোনটা করবেন, যদি টিভির সামনে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলেন, তাহলে টিভিতে একবার শুনবেন, ফোনে একবার শুনবেন। এভাবে আপনার কথা আমি বুঝতে পারবো না, আমাদের কথা আপনারা বুঝতে পারবেন না। তার জন্য ফোন করলে টিভি থেকে দূরে চলে যাবেন, বাড়ির অন্যরা টিভি দেখুক। আর যদি আপনি একা থেকে থাকেন তাহলে টিভির ভলিউমটা কম করে তারপর ফোনটা করবেন। सर, इनका शुगर बढ़ा हुआ है, प्रेशर भी है और क्रिएटिनिन ज्यादा है। सो अभी ये टेस्ट है, तो उनको क्या खाना है, क्या खाना नहीं चाहिए। तो हार्ट के लिए कोई प्रॉब्लम है? देखिए, अगर डायबिटीज पेशेंट हैं
ओके डायबिटीज से अगर उनका किडनी डैमेज हुआ है तो इतना मान के चलिए कि इनका हार्ट भी डैमेज हो चुका है। अगर इनका एंजियोग्राफी किया जाएगा तो हार्ट की सारी आर्टरीज में ब्लॉकेज निकलेगा। लेकिन मैं उनको रिकमेंड नहीं कर रहा एंजियोग्राफी करने के लिए, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि इनका जिस मतलब डेफिनेटली डायबिटीज काफ़ी लंबे समय से होगा, उसकी वजह से किडनी अगर डैमेज हुआ है तो सिर्फ एक ऑर्गन डैमेज नहीं होता, उसके साथ में मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होते हैं। तो डेफिनेटली हार्ट की आर्टरीज भी ठीक नहीं होगा। उनको थोड़ा सा भी कुछ काम करते होंगे, चलते होंगे तो छाती में दर्द या सांस फूलता होगा उनको। सर तो रूल आउट करने के लिए एक बार एंजियोग्राफी कर लें? ना एंजियोग्राफी करने में डाई इस्तेमाल होता है। ओके। और डाई नेफ्रोटॉक्सिक है। ओके। तो हम लोग एंजियोग्राफी करने से पहले सीरम क्रिएटिनिन देखते हैं। अगर सीरम क्रिएटिनिन 1.5 1.6 से नीचे है जब भी हम एंजियोग्राफी करते हैं। ओके। नहीं तो अगर मान लो क्रिएटिनिन ज़्यादा है और पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है तो हो सकता है कि एंजियोग्राफी करने में पेशेंट का किडनी और ज़्यादा खराब हो जाए और पेशेंट डायलिसिस पे चला जाए। ओके। तो वही अभी वो जानना चाह रहे थे, मतलब वो क्या करें। तो क्योंकि उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो फोन पे वो सुन नहीं रहा था, तो शायद मुझे पता नहीं चला कि क्रिएटिनिन कितना है, तो बढ़ा हुआ है, तो व्हाट शुड ही डू नाउ राइट नाउ? अगर क्रिएटिनिन डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्रिएटिनिन इतना ज़्यादा है तो अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर मेंटेन करके रखें। ओके। कंट्रोल करके रखें, क्योंकि एक बार क्रिएटिनिन मतलब एक बार किडनी डैमेज हो गया तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। ओके। एक समय के साथ हो सकता है 4-5 साल 5 साल के बाद डायलिसिस का जरूरत पड़ेगा उनको। लेकिन अगर वो कंट्रोल करके रखेंगे, ब्लड प्रेशर शुगर को अगर टाइट कंट्रोल करके रखेंगे तो वो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा। आप जो एक बार किडनी डैमेज स्टार्ट हो गया उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये है कि उसको स्लो कर सकते हैं। उस किडनी का जो रिग्रेस हो रहा है जो उसको थोड़ा सा आप स्लो कर सकते हैं। प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। ओके। और एक दोस्त हैं हम लोग के साथ। হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ নমস্কার, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? জি हेलो। হ্যাঁ বলুন, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? जी हमें डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप बोलिए, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं कश्मीर श्रीनगर से बोल रही हूँ। कश्मीर श्रीनगर से? जी जी बोलिए। तो मेरी जो मदर है उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। अब उनकी वजह से उनको स्किन की प्रॉब्लम भी है और मतलब वो चल नहीं पाती है। देखिए हार्ट की प्रॉब्लम से स्किन की प्रॉब्लम नहीं होता है जी। हाँ, तो चल क्यों नहीं पाती हैं? मतलब उनको ना पैर में प्रॉब्लम होती है चलने की वजह से, लेकिन उनके कुछ टेस्ट हमने करे थे तो उन्होंने कहा था कि मतलब ये हार्ट की वजह से इनको है। ऐसा हो सकता है? नहीं, हार्ट की वजह से स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और चल नहीं सकते सर, वो तो स्किन का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। स्किन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और हार्ट की वजह से क्यों नहीं चलेंगे? हार्ट की वजह से पैर में ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर आपको कुछ कंफ्यूजन है कि मतलब उसकी कोई ऐसी मेडिसिन जो हार्ट वाले पेशेंट के लिए कि इसका मतलब बीपी भी हाई हो जाता है। नहीं, देखिए हार्ट की मेडिसिन खाने से बीपी हाई नहीं होगा, बीपी वैसे ही आपका हाई होगा। नहीं, बीपी वैसे ही उनका हाई होता है। उनको एक तो हार्ट की प्रॉब्लम है और दूसरा बीपी प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो उसमें उसका चलने से क्या रिलेशन है? वो तो चल ही सकती हैं। उनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होते हैं? दर्द होता है? हाँ, उनको पेन रहती है। पेन्स कहाँ पे? पैरों में या पैरों में? नहीं, हार्ट की वजह से पैरों में पेन नहीं होगा। ओके। चलिए आप साथ रहिए, सुनते रहिए। सर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है क्योंकि हार्ट के चलते वो कह रहे हैं कि मतलब पैरों में दर्द हो रहे हैं, स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है। पैरों में दर्द अगर कोई किसी और प्रॉब्लम से हो सकता है, और प्रॉब्लम से हो सकता है, कोई कोइंसिडेंस, कोई दूसरी बीमारी हो, वैसे भी हो सकता है। और उनका बीपी भी हाई रहता है और हार्ट का भी प्रॉब्लम है। ये ऐसे हो सकता है। देखिए अब हार्ट में अगर आर्टरी ब्लॉकेज है तो हार्ट की आर्टरी ब्लॉकेज किसकी वजह से होती है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ओके। तो ऐसा तो नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट में जमा होगा। ओके। कोलेस्ट्रॉल तो पूरी बॉडी में जमा है, दूसरे पार्ट में भी जमा है। ऐसा देखा गया है जिस तरह मान लो अगर हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है, ब्रेन में ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन अटैक होता है, तो जिसको हार्ट अटैक होता है उसको ब्रेन अटैक होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है, और जिसको ब्रेन अटैक होता है उसको हार्ट अटैक होने की संभावना इतनी ज्यादा रहती है। कभी कभी क्या रहता है कि कोलेस्ट्रॉल पैर की आर्टरीज में भी रहता है। अच्छा, ये दर्द तब से? नहीं, पैर की आर्टरीज में रहने की वजह से पैर को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती, स्पेशली चलते वक्त पैरों में दर्द इसलिए भी होता है। वो एक पॉसिबिलिटी है। ओके, पॉसिबिलिटी है। यही एक पॉसिबिलिटी है, नहीं तो और किसी कारण से हार्ट की वजह से दर्द। इट्स नॉट रिलेटेड टू हार्ट। हाँ, बस ये हो सकता है कि हार्ट की जो पैर की आर्टरीज है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो, ये एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए दर्द हो सकता है। ओके, अभी আরেকজন বন্ধু আছেন, কে আছেন আমাদের সঙ্গে দেখি। হ্যালো। হ্যালো, নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার। हाँ नमस्कार जी। আমি প্রথম থেকে বলছি, আমি দুবার ফোন করেছিলাম আপনাদের টিভিতে। হ্যাঁ বলুন। আমি
জানতে চাইছি স্যারের কাছে, আমি রিউমাটিক আর্থ্রাইটিসের রোগী। আমি সাজো 500 খাই এবং অন্যান্য সাইড খাই। আমার ইউরিক অ্যাসিড 6.8। তা আমার পরবর্তীকালে কি আমার হার্টের সমস্যা হতে পারে? ওকে, আপনি আর্থ্রাইটিসে ভুগছেন? রিউমাটিক আর্থ্রাইটিস। হ্যাঁ, ওকে। আপনি কতদিন ভুগছেন এটা? 96 থেকে, বহু বছর। আচ্ছা, আপনার এই মুহূর্তে বয়স কত? 35 প্লাস। ওকে, আপনার সুগার প্রেশারের কোনো সমস্যা নেই তো? না, রিসেন্ট 6 মাস আগে আমি ইউরিক অ্যাসিড টেস্টটা করেছিলাম। তা আমার 6.8% এসেছিল। देखिए आपका रोमेटिक आर्थराइटिस और यूरिक एसिड আপনি সঙ্গে থাকুন, আপনি সঙ্গে থাকুন। रोमेटिक आर्थराइटिस और यूरिक एसिड की वजह से हार्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो मतलब आप अगर आपको ऐसा लगता है इन बीमारी की वजह से मेरे को हार्ट अटैक होगा या हार्ट की डिजीज होगा, ऐसा नहीं है। ओके, আপনি সঙ্গে থাকুন। শুনলেন আপনি? नहीं, एक्चुअली सर क्या होता है ना, मतलब लोग टेंस्ट हो जाते हैं हार्ट को लेके, क्योंकि हार्ट अटैक ऐसा एक बीमारी है, अभी कभी आ जाता है तो लोग मतलब श्योरिटी नहीं है कि बच पाएंगे कि नहीं। इस बीमारी से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब हार्ट अटैक का जो उन्होंने 2 बीमारी बताई अपनी यूरिक कुछ और बीमारियों से होते हैं, मतलब शुगर से होते हैं। हाँ, शुगर से होता है। मैं अभी जिस तरह आप पूछ रहे थे कि इंडिया में हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों होता है, मैं आपको एक जेनेटिक रीजन बताया था, और दूसरा आपको बताया था कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं उनका हेल्थ हाइट ज़्यादा होता है इंडियन से। तो उनका जब हेल्थ हाइट बड़ा होगा तो उनका हार्ट का साइज भी बड़ा होगा। अच्छा, सब ऑर्गन का साइज बड़ा होगा, तो उसके ऊपर जो खून की आर्टरी है उनका कैलिबर भी बड़ा होगा। अच्छा, मोटे होंगे कैलिबर। अब सोचिए एक पानी का पाइप इतना मोटा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमेगा, उतना ही कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो ब्लॉकेज नहीं होगा। लेकिन अगर पाइप छोटा हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल उतना ही जमेगा तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए इंडियंस में हाइट कम होने की वजह से आर्टरी का जो साइज है वो छोटा रहता है, तो कम कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ज़्यादा सिग्निफिकेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो मतलब इंडिया में मतलब जो जिनका शॉर्ट है, एशियन कंट्रीज में जिनका शॉर्ट हाइट है, साइज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ये भी जेनेटिक हो गया। फिर डायबिटीज हो गया। स्पेसिफिकली आपने इंडियंस को देखा होगा, इंडियन जेंट्स को हाथ पैर बहुत पतला रहता है उनका, लेकिन अब्डोमेन ओबेसिटी रहती है। ये अब्डोमिनल ओबेसिटी सबसे डेंजरस है। अगर कोई मोटा आदमी है जिसका पूरा बॉडी मोटा है, वो इतना डेंजरस नहीं है। अच्छा, एक आदमी जो पूरा ओबेस है उसका भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कंपैरिजन अगर किया जाए, अच्छा, एक आदमी बिल्कुल पतला दुबला है, हाथ पैर बिल्कुल पतले दुबले हैं, सिर्फ अब्डोमिनल ओबेसिटी है, और एक आदमी पूरा मोटा है, तो जो सिर्फ अब्डोमिनल ओबेसिटी है वो ज्यादा डेंजरस है। अच्छा, वो क्यों है सर? अब्डोमिनल ओबेसिटी जिनका है उनमें ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा मिलता है। अच्छा, आप किसी भी अब्डोमिनल ओबेसिटी वाले का आप रैंडमली अगर आप ऐसे पेशेंट का अगर आप ले लीजिएगा तो उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा मिलेगा आपका। अच्छा, तो ट्राइग्लिसराइड क्या प्रॉब्लम करते हैं सर हार्ट को? ट्राइग्लिसराइड के साथ जिसका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है उसका एचडीएल लेवल भी कम मिलेगा। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो लिपिड प्रोफाइल पूरा डिरेंज रहता है। और दूसरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। तो अब्डोमिनल ओबेसिटी तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए किसी का। ओके सर, हम आते हैं इस टॉपिक पे सर, और कुछ ज़्यादा डिस्कस करना है ये इस टॉपिक में। देखिए কে আছেন এই মুহূর্তে টেলিফোনে। হ্যালো, টিভির ভলিউমটা কম করতে হবে বা টিভি থেকে অনেকটা দূরে আসতে হবে, নাহলে কথা শুনতে পাবেন না। বলুন, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? আমি হাওড়া থেকে বলছি। হাওড়া থেকে বলুন। হ্যাঁ, হাওড়া থেকে নর্থ বলছি। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, আমার স্বামী স্ট্রোক মানে 3 বছর স্ট্রোক হয়ে গেছে। তিনি হাঁটতে পারে না, মাঝে মাঝে চলে পড়ে। আচ্ছা, তার স্ট্রোকটা মানে অনেকবারই হয়ে গেছে, 4-5 বার মতো হয়ে গেছে। 4-5 বার স্ট্রোক হয়ে গেছে। ওনার বয়স কত এই মুহূর্তে? বয়স 34 হবে। 34? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে। উনি না গায়ে বল পায় না, মাঝে মাঝে পড়ে যায়। ওকে, এরকম গায়ে শক্তি পায় না। আচ্ছা, তো আপনি এখন কি জানতে চাইছেন, মানে উনি কিভাবে সুস্থ থাকবেন সেটা? হ্যাঁ, কিভাবে আগে সেটাই জানি। ओके, अपने संगे থাকুন। सर, इशू तो डिफरेंट है सर। उनके हस्बैंड के एज 34 है, 4-5 बार स्ट्रोक कर चुके हैं। कौन सा स्ट्रोक? हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक? हार्ट स्ट्रोक করেছেন না? হ্যাঁ, তারপরে
ब्रेन स्ट्रोक भी दो तरह का होता है, एक हेमरेज होता है, एक नॉन हेमरेजिक। कौन सा है? एक इन्फ्राक्ट रहता है और एक हेमरेजिक रहता है। একবার ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে তারপর হার্ট স্ট্রোক হয়েছে তাই তো? হ্যাঁ 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 ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি সঙ্গে থাকুন। একবার ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था अभी कि हाँ। जो कोलेस्ट्रॉल है, हाँ कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ ब्रेन में डिपॉजिट है, पूरी होल बॉडी में डिपॉजिट है कोलेस्ट्रॉल। ओके। अगर ब्रेन की आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा है, उससे ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुकता है तो ब्रेन स्ट्रोक होगा। स्ट्रोक हो जाएगा। अगर हार्ट की आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा है, उसकी सप्लाई रुकेगा तो हार्ट स्ट्रोक होगा। हम्म, तो जिसको हार्ट स्ट्रोक होता है उसको ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ओके और जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उसको हार्ट अटैक होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ओके, साइमल्टेनियसली दोनों होने के चांसेस हैं। इत्तेफाक से हो ही सकता है, हो सकते हैं, हो ओके। सकता है। तो डेफिनेटली उनका लिपिड प्रोफाइल बहुत डिरेंज होगा, उनको हाई डोज स्टेटिन लेना चाहिए अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, और खून पतला करने का एस्पिरिन क्लोपिडोग्राल टैबलेट थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ओके, अभी वो चल नहीं सकते हैं, मतलब चलने चलना से तो गिर देखिए, जाते हैं ऐसे चलना बोल रहे तो हैं, ये हो बहुत सकता weak है हो कि चुके देखिए ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो सकता है कोई पैरालिसिस वगैरह हुआ हो, हम्म। इस वजह से नहीं चल पा रहे होंगे, हैं। ओके उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके सर, तो आप कह रहे थे सर, मतलब ये जो लंबाई के चलते या जेनेटिक प्रॉब्लम। हाँ, जेनेटिक प्रॉब्लम, अब्डोमिनल ओबेसिटी जो मैंने आपको Obesity, बताया, हाँ। अब्डोमिनल ओबेसिटी खासकर इंडियंस में ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, इसलिए इंडिया में हार्ट डिजीज हाँ, लीडिंग और डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया कैपिटल हब है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ डायबिटीज़, और आपने देखा होगा आजकल स्मोकिंग बहुत जल्दी होती है, बहुत कम एज में स्मोकिंग स्टार्ट हो गया है। ओके सर, हम आते हैं इस बारे में कि नशे के बारे में। एक और दोस्त हैं हमारे साथ। हेलो হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ নমস্কার, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? আমি উত্তরপাড়া থেকে বলছি, গোপা মুখার্জি। হ্যাঁ গোপা দেবী বলুন, কি জানতে চাইছেন? হ্যাঁ, ওই স্যারের কাছে একটু জানবো যে আমার সুগার আছে, প্রেশার আছে, আচ্ছা তা মাঝে মধ্যে আমার ওই বুকের বাদিকটা একটু মোটামুটি ব্যথা করে, আবার কিছুক্ষণ বাদে ঠিক হয়ে যায়। ওকে হ্যাঁ, তা এমনি আমার গ্যাস অম্বলের ধাত আছে আর সুগার প্রেশার আছে। आपका एज कितना है? আপনার বয়সটা কত স্যার জানতে চাইছেন? আমার হচ্ছে 57। 57। ओके अच्छा, आप जो चलते हैं, है ना, तो चलने पे दर्द होता है या बैठे बैठे दर्द होता है आपको? মানে আপনি যখন হাঁটেন তখন ব্যথা বেশি হয় নাকি যখন বসে থাকেন তখনও হয়? না না না, আমার বাড়িতে থাকলে তখন মাঝে মধ্যে বুকের বাদিকটা কিরকম ব্যথা করছে, আবার কিছুক্ষণ বাদে হয়তো করে না যায়। ওকে, কবি কবি होता है सर, लेफ्ट साइड में थोड़ा पेन होता है। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আপনি বলুন তো, যে আপনার যে এই যে সুগার আপনি লাস্ট মেপেছিলেন তখন কত ছিল? হ্যাঁ, তখন আমার মোটামুটি ওই 165 এর মধ্যে থাকে। খাওয়ার আগে না খাওয়ার পরে? না, ওটা হচ্ছে ফাস্টিংটা। ফাস্টিংটা। ওকে, আপনি সঙ্গে থাকুন গোপা দেবী, সঙ্গে থাকুন। ঠিক আছে, ঠিক আছে। देखिए, सबसे पहले तो जो उन्होंने पूछा कि मेरे को चलने पे या कुछ, आपने क्या रहता है कि जो भी पेशेंट डायबिटिक हैं, स्पेशली जो फीमेल्स का जब मेंसेस खत्म हो जाता है, ओके तो फीमेल्स बेसिकली जब तक मेंसेस रहता है तो उनके जो फीमेल्स के हार्मोन रहते हैं, उनको हार्ट का डिजीज जनरली कोलेस्ट्रॉल हार्ट की आर्टरी में नहीं जमता है। अच्छा लेकिन जैसे ही मेंसेस खत्म हो जाता है ओके तो जो उनका प्रोटेक्शन था जो हार्मोन्स का, वो तुरंत खत्म हो जाता है। ओके तो मेंसेस खत्म होने के बाद बहुत जल्दी फीमेल्स में हार्ट डिजीज बढ़ती है। अच्छा, और तब जमने लगता है। हाँ, जब जमने लगता है। ओके और स्पेशली डायबिटीज है तो डायबिटीज में और ज्यादा चांस है और जमे। हम्म, अगर 70% तक अगर आर्टरी में ब्लॉकेज है तो पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होता है। हम्म, अगर जैसे जैसे 70% से 80% होता है तो सिटिंग पोजीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कुछ काम करेंगे, मान लो दौड़ के जाएंगे 200 मीटर 500 मीटर, तो आपको छाती में भारीपन दबाव जैसा लगेगा। ओके अगर वो 80% का 90% हो जाएगा तो सीढ़ियाँ चढ़ने पे या थोड़ा सा और कम काम करने से और ज़्यादा तकलीफ, भारीपन लगेगा, फिर बैठने से ठीक लगेगा। अच्छा तो आपने कई बार देखा होगा ना, मेरे को बैठे हुए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ काम करने लगता हूँ, सीढ़ी चढ़ने लगता हूँ, तो मेरे को छाती पर दबाव है, छाती में दर्द होने लगता है। सर, ये जो दर्द है, ये दबाव आप जो कह रहे हैं, दबाव और दर्द, सर बीच में इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? जैसे मान लीजिए कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हाफ रहे हैं, हाँ हाँ, तो वो एक हो गया, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो हाफने लगते देखिए हाफना एक बेसिकली अब 3-4 फ्लोर चलने पे तो कोई भी आदमी हाफेगा। हैं। ओके अब हर आदमी अपनी कैपेसिटी जानता है। मान लो आज से 2 साल पहले वो 3 तल्ला चढ़ पाता था, लेकिन अभी नहीं चढ़ पा रहा है। अच्छा ये तो बेसिकली कंपैरिजन टर्म हो गया। कोई फिजिकली एक्टिव है तो 10 तल्ला भी चढ़ जाएगा। ओके। वो पेशेंट को खुद ही एसेस होने लगेगा कि पहले मैं इतना कर पाता था लेकिन अब मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, दर्द होने लगते हैं या मतलब दोनों हाफने लगते हैं? दोनों ही चीज हो सकती है। एक अजीब तरह का चाप जैसा लगेगा कि मेरे को मतलब दबा दिया है किसी ने। ओके ओके तो
ऐसे केसेस के लिए टीएमटी करना चाहिए, ट्रेडमिल टेस्ट। जिस तरह मान लो आप मैडम जिस तरह बता रही है मेरे को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लेकिन कुछ काम करने से मेरे को दर्द होने लगता है, इसका मतलब हाई चांस है कि उनको 80 to 90% ब्लॉकेज हुआ है। वो ईसीजी करेंगे, ईसीजी नॉर्मल आएगा, अच्छा, लेकिन वो ट्रेडमिल करना होगा। जब ट्रेडमिल करेंगे उस समय आपका ईसीजी में चेंजेस आ जाएगा। बेसिकली ट्रेडमिल क्या हुआ, ईसीजी स्ट्रेस ईसीजी। अच्छा, ओके, तो उनको मैं हाँ चलते दौड़ते दौड़ते उनको जब दर्द होगा उस समय का ईसीजी देखा जाएगा कि कुछ चेंजेस आए या नहीं। ओके, तो ईसीजी और इको नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं है। ओके, अगर आप अर्ली डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो ट्रेडमिल टेस्ट, जिस तरह मैडम को है उनको मैं उनको अभी करना है एक ट्रेडमिल टेस्ट में अवॉइड करूंगा कि ट्रेडमिल टेस्ट करें। अगर ट्रेडमिल टेस्ट में ईसीजी नॉर्मल रहता है, स्ट्रेस ईसीजी नॉर्मल रहता है, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके सर, ये जो मतलब दर्द की बात आप कह रहे थे, मतलब ये जो दर्द है लेफ्ट साइड में, मैं कह रहा था कि लेफ्ट साइड में पेन, कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, थोड़ा बहुत पेन है, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, माइल्ड अटैक तो नहीं हो गया, तो कैसे डिफरेंशिएट करें कौन सा दर्द हार्ट अटैक का है? ये डिफरेंशिएट करना बहुत टफ है। ओके, क्योंकि जो बुक्स में जो टिपिकल नेट पे जो आपको मिलेगा करेक्टरिस्टिक ऐसा पेन होना चाहिए, वो सिर्फ 25% लोगों में मिलता है। अच्छा, स्पेशली जो अगर किसी का पहले एंजियोप्लास्टी हो चुका है, पहले बाईपास सर्जरी हो चुका है, ओल्ड फीमेल है या ओल्ड मेल है, या लंबे समय तक डायबिटीज़ है ना, ऐसी या क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो ऐसे लोगों को तो कई बार हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक भी हो जाता है, उनको चेस्ट पेन ही नहीं होता है। अच्छा, और यंग आदमी में जल्दी पकड़ में आ जाता है पेन। मतलब बड़ा डिफिकल्ट है कि आपको बता पाए कि किस तरह का पेन होगा। ओके, मतलब क्लियर कट कोई पेशेंट नहीं बता पाएगा कि किस तरह का पेन होगा। तो फिर हम सर हम कैसे समझे कि अगर कोई आपको पेन- डाउट हो रहा है तो कम से कम कभी भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप एक ईसीजी जरूर कराइए। ओके, ओके, तो फिर सर अगर हार्ट अटैक को हमको मॉनिटर करना है, मतलब अगर किसी का हार्ट अटैक, मेरे सामने वाले बंदे को हार्ट अटैक हुआ कि नहीं या कुछ हो रहा है कि नहीं, उसका प्रॉब्लम कुछ है, तो हम क्या करें सर, हाउ कैन वी हेल्प? देखिए, अगर मान लो अब जिस तरह पेन जो क्लासिकल जो बताया गया है हार्ट अटैक का पेन, ओके, वो आपका जनरली लेफ्ट साइड होगा, लेकिन कुछ परसेंटेज में राइट साइड भी हो सकता है। ओके, उसका पेन जो है लेफ्ट हैंड में भी जाएगा, स्पेशली फिंगर्स तक, यहाँ तक जा सकता है, हालांकि राइट हैंड में भी जा सकता है, ओके, अप टू लोअर जा तक। अच्छा, अगर कोई पेन अपर जा तक ऊपर जा रहा है तो हार्ट का पेन नहीं होगा, ओके, अम्बलाइकस के नीचे है तो पेन हार्ट का नहीं होगा। अच्छा, इवन तक अगर डिस्पेप्सिया हो रहा है, अगर कोई गैस का दर्द भी बोल रहा है तो वो भी एक हार्ट का दर्द हो सकता है। अच्छा, और एक दबाव जैसा लगेगा कि छाती पे कोई भारीपन हो गया है। ओके सर, ये आप कह रहे थे कि माइल्ड हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक, व्हाट इज द डिफरेंस? वो जो आप पहले कह रहे थे, मतलब ना, जो मैं ये बताया था कि वो डिपेंड करता है, अगर जो ब्रांच जो आर्टरी है उस आर्टरी के अगर आखिरी एंड में, ओके, जिस तरह मान लो आपका हार्ट ऐसे पंप कर रहा है, हार्ट ऐसे है, अगर सिर्फ इस पोर्शन में ब्लड सप्लाई तो इतनी ही ब्लड सप्लाई रुकेगी, तो माइनर हार्ट अटैक हो गया। अगर वो शुरू में ही अगर रुक जाए तो बड़ा हार्ट का बड़ा पोर्शन इन्वॉल्व होगा, तो उसको मेजर हार्ट अटैक बोल सकते हैं। ওকে দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন আজ ডিডি ত্রিপুরার হেলথ টক শো হ্যালো সুস্বাস্থ্যে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আইএলএস হসপিটালস আগরতলার কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর হেমন্ত কুমার গার্গ, যিনি প্রচুর অপারেশন করেছেন, প্রচুর হার্ট অপারেশন করেছেন, প্রচুর মানুষের এনজিওপ্লাস্ট করেছেন, এনজিওগ্রাম করেছেন, উনি পেসমেকার বসিয়েছেন। তো আজ ওনার থেকে আমরা হার্টের বিভিন্ন সমস্যাগুলো কেন হয়, কিভাবে হয়, আমরা কি করতে পারি সেসব নিয়ে আলোচনা করছি। তো উনি যেহেতু বাংলা বোঝেন কিন্তু উনি বাংলা বলেন না, তো তার জন্য আমরা হিন্দিতে কথা বলছি। আপনারা যদি কোনো রকম কিছু জানতে চাইছেন, যদি আপনার হার্টের সমস্যা হয়ে থাকে বা আপনার পরিচিত কারোর কোনো হার্টের সমস্যা থেকে থাকে, আপনি কিছু জানতে চান, তাহলে কিন্তু সরাসরি আমাদের স্টুডিওতে ফোন করতে পারেন। স্যার, ये जो हार्ट अटैक, लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक कुछ देर तक लास्ट करता है, जैसे कि আর্থকুয়েক, ভূমিকম্প হলে যেরকম কিছুক্ষণ থাকে ঠিক একইভাবে हार्ट अटैक कुछ देर तक रुकता है। तो ये क्या है सर, मतलब कितना देर तक रुकता है, मेजर या माइनर के? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हार्ट अटैक कितनी देर तक बार बार आते रहते हैं, मतलब आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं? एक बार हार्ट अटैक हो गया तो दूसरी बार भी हो सकता है? मतलब देखिए, अब फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह जी, उनका 2 बार बाईपास सर्जरी हुआ है। ओके, सारी दुनिया जानती है। तो ऐसा नहीं है कि आदमी को एक बार हार्ट अटैक है दोबारा नहीं होगा, तिबारा नहीं होगा। इवन तक बाईपास हो चुका है तो उसको दोबारा बाईपास करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, एंजियोप्लास्टी, देखिए ब्लॉकेज एक नेचुरल प्रोसेस है। आप एक सोचिए, एक पानी का पाइप रखा हुआ है, ठीक, धूप में रखा हुआ है, वो खराब होगा। ठीक, अब एक जगह खराब हुआ, आपने लोहे की गिट्टी लगा दिया, तो क्या बाकी का पानी का पाइप खराब नहीं होगा क्या? तो हार्ट में 3 आर्टरी हैं। अच्छा, तीनों बड़ी बड़ी आर्टरी हैं। एक जगह ब्लॉकेज हुआ है,
हमने वहाँ पे ठीक कर दिया, एंजियोप्लास्टी कर दिया, कुछ भी कर दिया, कहीं और जगह हो तो सकती कहीं है। दूसरी जगह भी हो सकता है। ठीक है। तो तो इसमें किसी का मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता है सर? देखिए, अगर ह्यूमन या साइंस अगर ब्लॉकेज को रोक लेगा तो इस संसार में आदमी अमर हो जाएगा। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल बात है। ओके। ये जो भी बोलते हैं, नेट पे देखते हैं, ये बाबा रामदेव या कोई भी कुछ बोलता है, कोई भी बोलता है कि मैं ब्लॉकेज को हटा दूंगा, अच्छा, अगर कोई दवा ब्लॉकेज को हटा सकती है ओके। तो वो अमर दवा हो जाएंगे खाने लोग। से, अगर वो दवा खाने से तो ब्लॉकेज होना भी नहीं चाहिए। फिर मान लो अगर कोई मेडिसिन से आप किसी को बोलते हैं मैं ब्लॉकेज निकाल दूंगा, ब्लॉकेज आपका निकल जाएगा, तो मेडिसिन खाने से ब्लॉकेज होगा ही नहीं। होना ही नहीं चाहिए। फिर ठीक, तो उसको मेडिसिन दे दीजिए तो मैं खा लूंगा, मेरा कोई ब्लॉकेज ही नहीं होगा। ठीक, देखिए, ब्लॉकेज एक नेचुरल प्रोसेस है, वो ओके। टाइम के साथ होना तय है। ओके, लेकिन अगर आप जो मेडिसिन अवेलेबल हैं उनको खाएंगे तो उस ब्लॉकेज का जो स्पीड होने का है, जैसे मान वो लो थोड़ा किसी कम हो सकता वो स्लो हो जाएगा, प्रोसेस थोड़ा कम हो। प्रोसेस स्लो हो जाएगा। लेकिन आप अगर कोई ये क्लेम करता है कि मैं दवा खाने से ब्लॉकेज खत्म कर दूंगा या ब्लॉकेज नहीं होगा, ये सब मिथ्या बात है। सर ये हार्ट अटैक में कोई है हमारे साथ, देखते हैं। ओके सर, एक गोल्डन आवर बोल के हम कुछ सुनते हैं सर। हार्ट अटैक में एक गोल्डन आवर बहुत जरूरी होता है सर। व्हाट इज गोल्डन आवर, और इस कितना टाइम होता है ये गोल्डन आवर में? तो 1 घंटा? नहीं, आप बता रहा हाँ, हूँ। और ये सर पूरा डिटेल्स क्या है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, उंगली आप बंद कर लीजिए हाथ पे, ठीक, ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। ठीक, अगर बिल्कुल ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो क्या होगा, उंगली धीरे धीरे करके डैमेज होना स्टार्ट होगा। सही बात। शुरू में नीला होगा, हम्म, फिर धीरे से ऊपर काला होना चालू हो जाएगा, डैमेज होना चालू हो जाएगा। हम्म, ठीक है। ठीक, और जब ब्लैक हो जाए आप खोल दीजिए तो ब्लैक पोर्शन कभी ठीक होगा? ओके, नहीं होगा, वो डैमेज हो गया। वो डैमेज हो गया। अच्छा, तो ऐसे ही हार्ट की नली में अगर आप ब्लॉकेज सडनली 100% अगर हो जाता है, 100% की बात बोल रहा हूँ मैं, 98%, 95, 98 उसकी बात नहीं कर रहा, अगर 100% ब्लॉकेज हो गया है तो हार्ट की जो मसल्स है तुरंत डैमेज होना स्टार्ट करती हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? तो धीरे 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 करके वो हार्ट का मसल्स डैमेज खत्म हो जाता है पूरा। तो गोल्डन आवर्स बोलते हैं मैक्सिमम 12 आवर्स, वैसे 6 आवर्स बोला जाता है। अगर आपका 6 आवर्स में अगर 100% ब्लॉकेज को अगर खोल दिया जाए तो हार्ट का मसल्स को डैमेज नहीं होता है। अच्छा, एकदम से नहीं होता है। एकदम से डैमेज नहीं होता है। ओके, अगर उसके बाद अगर धीरे 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 अगर लेट खोला जाए, आपने कई बार पेशेंट को देखा होगा, एंजियोप्लास्टी हो गया, ये सब हो गया, लेकिन आपका पंपिंग पावर आपका कम हो गया है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने लेट किया है। अच्छा, समय इज Damage मसल, थोड़ा हो गया muscle। हाँ, टाइम इज मसल। मतलब आप जितना जल्दी आप जो ब्लॉकेज को आप खोलेंगे, जैसे आप ब्लड सप्लाई कम होगा तो धीरे धीरे मसल्स तो डैमेज होना स्टार्ट होगा। तो जितना आप उसको लेट खोलेंगे उतना आपका परमानेंट मसल डैमेज रह जाएगा। तो सर हम थोड़ा सिस्टमेटिक बात करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये जो पहला 6 घंटा या 12 घंटा अगर 6 घंटे के अंदर अगर खोल दिया किसी जाए को, हाँ, तो हार्ट की मसल्स को कोई डैमेज नहीं होगा। दैट मीन्स किसी को अगर हार्ट अटैक आए तो जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी हॉस्पिटलाइज करना। हाँ, लेकिन पेशेंट समझता नहीं है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है हाँ, हार्ट अटैक हुआ है। वही मैं हॉस्पिटल आपसे जाते पूछ जाते रहा था टाइम कि लग पता जाता है। कैसे चले किसी को हार्ट तुरंत अटैक अगर उसको डाउट है तो ईसीजी कराए, आए? ओके, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। घर में अगर किसी को हार्ट अटैक, कभी कभी देखते हैं हार्ट अटैक आ गया, अभी सीना पकड़ के बैठ हाँ, जाए, तो तुरंत ईसीजी कराना चाहिए। अच्छा, और अगर हार्ट अटैक है तो तुरंत हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए। और ओके, जैसे ही हार्ट अटैक पता चले तो इकोस्प्रिन का टेबलेट, एस्प्रिन का जो टेबलेट होता है वो तुरंत खा लेना चाहिए। अच्छा, टेबलेट, एस्प्रिन टेबलेट जो मिलता है ओके, उसको पीस के तुरंत खा लेना चाहिए। ओके। सर ये गोल्डन आवर तो ये हो गया सर, मगर आप ये मुझे बताइए कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम सुनते हैं कि अब कभी एंजियोग्राम करते हैं तो फिर एंजियोप्लास्ट, एंजियोग्राफी, ये 3 हो गया। सर व्हाट आर दिस, मतलब इसका क्या मायने होता है? एंजियोग्राफी हम कहीं का भी कर सकते हैं। ओके, हार्ट की जब एंजियोग्राफी करते हैं तो उसको कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं बोलते हैं। किडनी की एंजियोग्राफी करते हैं तो रीनल एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो बेसिकली एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि हार्ट की तीनों जो आर्टरीज हैं उसको देखना कि उस आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज है या नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंजियोग्राफी। ओके, अगर एंजियोग्राफी के बाद अगर मल्टीपल ब्लॉकेज है तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी लगेगा या बाईपास सर्जरी लगेगा। अच्छा, तो अगर पेशेंट एंजियोप्लास्ट में क्या होता है सर? एंजियोप्लास्टी में बेसिकली जो ब्लॉकेज है, हाँ, उसको आप, ब्लॉकेज को निकाल के हटा के बलून से हटा के उसमें स्टंट लगा देते हैं, ओके, उसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ओके, और नहीं तो बाईपास करना। नहीं तो बाईपास सर्जरी। ओके सर, आप ये कह रहे थे मतलब जो एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्ट, एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी एंजियोग्राम सेम हुआ। ओके, एंजियोग्राम,
एंजियोग्राम और एंजियोग्राफी सेम हुआ। सेम होगा। हार्ट की करेंगे तो कोरोनरी एंजियोग्राफी, किडनी की करेंगे तो रीनल एंजियोग्राफी, ब्रेन की करेंगे तो ब्रेन एंजियोग्राफी, पैर की करेंगे तो पेरिफेरल एंजियोग्राफी, ये अलग चीज हो गया। एंजियोप्लास्टी मतलब जो ब्लॉकेज को खोल देना। ओके सर, तो अब आते हैं सर, ये हार्ट अटैक के रिस्क जोन में ज्यादा कौन होते हैं सर? हाँ, अभी जिस तरह मैं बात कर रहा था, अभी हम लोग एक एक करके आ रहे थे, जेनेटिक रीजन हो गया। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक सबसे बड़ा जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स को फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको भी हार्ट अटैक होगा। ओके। हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। जिस पे आपका बस नहीं है, जैसे जेनेटिक पे आपका बस नहीं है, आपके पेरेंट्स में है तो है, वो रिस्क है। जेनेटिक रीजन को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके। अगर पेरेंट्स को आपको डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो जेनेटिक को आप चेंज नहीं कर सकते। एक तो फैमिली हिस्ट्री हो गया, दूसरा अगर आप ओबेस हैं, मैंने जो स्पेसिफिकली बताया आपका अब्डोमिनल ओबेसिटी स्पेशली, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओके ओके, स्ट्रेस, तो ये जो मेन है, ये मेन तो सारे रेसिपी तो हैं सर। ये स्ट्रेस आजकल जिंदगी में ज्यादा है, डायबिटीज ज्यादा हो रहे हैं, और जेनेटिकली तो इसमें कोई हाथ नहीं है। तो इस और ये इसके चलते हाइपरटेंशन, बीपी ज्यादा होना, बीपी ज्यादा होना। डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो एक तरह से देखा जाए तो साइलेंट किलर है। ओके। धीरे धीरे बॉडी को डैमेज करते हैं। सर जैसे शुगर में, जैसे किसी का शुगर अगर हाई रहता है तो वो कहते हैं कि मतलब ऑर्गन्स खराब करते हैं और एंड ऑर्गन खराब करते हैं, तो हार्ट भी एंड ऑर्गन हो गया सर। तो इसके चलते ब्लड वेसल्स या आर्टरी जो आप कह रहे हैं कि उसका वीक होने का कोई चांसेस है मतलब, और उसके चलते उसके ऊपर अभी कोलेस्ट्रॉल जमने का चांसेस ज्यादा हो? देखिए, डायबिटीज में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमता है, और डायबिटीज में स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल इस तरह का जमता है कि पूरी आर्टरीज में पूरा कोलेस्ट्रॉल जमता है। और डायबिटीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज में नर्व्स भी डैमेज होती हैं। Okay. तो जो पेन होना चाहिए, बेसिकली पेन क्या है, प्रोटेक्शन है। ओके। पेन भगवान ने जो दिया है वो प्रोटेक्शन के लिए दिया है। आपको कहीं पे पेन होगा तो आप वहां से उससे बच जाइएगा। अगर किसी आदमी को पेन ही नहीं होता तो ज्यादा खतरनाक है। तो डायबिटीज में उसको पता ही नहीं चलेगा हार्ट अटैक। पेन तो एक सिंबल होता है, मतलब सिंबल है, लेकिन पेन प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। आप मान लो आपको कोई चोट लग जाए तो आपको पेन होगा, आपको पता चल जाएगा। मान लो आपको पेन नहीं होता, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चोट लगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। खून बह रहा है, मतलब खून बह रहा है, आपको पता भी नहीं चल चलेगा। रहा है। तो पेन भगवान ने प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। अगर किसी को आपको चोट लग जाएगा, पेन पता नहीं चलेगा, तो बहुत डेंजरस कंडीशन है। आपको पैर में कांटा लग जाएगा, आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, आपको खून बहता रहेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, डायबिटीज में आपको हार्ट अटैक होने का पेन कम होगा या पेन नहीं भी होगा तो वो ज्यादा डेंजरस चीज है। ठीक सर, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारे शरीर में, कुछ फर्स्ट एड तो रहता ही है। तो हार्ट अटैक जब अगर हो जाए तो उसके लिए जब तक डॉक्टर के पास पहुंच ना जाए, हॉस्पिटल पहुंच ना जाए, कोई फर्स्ट एड होता है? मगर किसी को पता चल गया, अगर किसी को, मैं आपको बताया, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, अगर उसको पता चल गया है तो एस्पिरिन का टेबलेट, ओके, एस्पिरिन का टेबलेट सबसे पहले लें। ओके। एस्पिरिन का सिर्फ देखा गया है, अगर एस्पिरिन का टेबलेट तुरंत लेने के बाद अगर उससे जो मरने का चांस है, हार्ट अटैक की वजह से मोर्टलिटी 50% तक कम हो जाता है। ओके। सिर्फ एस्पिरिन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, एस्पिरिन का टेबलेट हर जगह मिलता है। 4 टेबलेट लेके उसको घोल के तुरंत ले लेना चाहिए। अच्छा, अगर बीपी डाइल्यूट करके ले लेना चाहिए? हाँ, अगर आप टेबलेट फॉर्म में लेंगे तो उसको टाइम लगेगा, बॉडी में एक्ट होने में टाइम लगेगा। इसमें समय मैटर करता है, इसीलिए उसको पीस के तुरंत लेना चाहिए, तुरंत बॉडी को मिल जाएगा। अच्छा, एस्पिरिन टेबलेट। ओके। अगर बीपी ठीक है तो हम सॉर्बिटेट का टेबलेट भी ले सकते हैं। सर अब ये थोड़ा बताइए, ये जो अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है अभी, जैसे कि स्ट्रोक में होता है पैरालिसिस हो जाता है, तो हार्ट अटैक में भी एक कोई पैरालिसिस होने का चांसेस होता है? हार्ट अटैक में हार्ट का मसल्स काम करना बंद कर देगा, हार्ट का पंपिंग पावर कम हो जाएगा। तो कभी कभी हार्ट का पंपिंग पावर कम होने की वजह से सडनली बीपी कम हो जाएगा, वो तकलीफ हो सकती है। आपने देखा होगा हार्ट अटैक का बीपी कम, जब हार्ट बेसिकली ब्लड पंप करता है, अगर ब्लड पंप करना आधा कर देगा तो बीपी भी ड्रॉप हो जाएगा। ओके। मगर कोई अदर ऑर्गन्स पैरालाइज तो नहीं होगा? हाथ पैर पैरालाइज होने का? हाथ पैर पैरालाइज नहीं होगा। ओके, जैसे स्ट्रोक में जैसे होता है कि एक साइड पैरालाइज हो गया, वो पैरालाइज नहीं होगा। लेकिन अगर बीपी आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो हो सकता है कि बीपी कम होने से किडनी डैमेज हो जाए इन फ्यूचर। ওকে ওকে দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখি, আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন হেমন্ত কুমার গর্গ, ডক্টর হেমন্ত কুমার গর্গ, যিনি কার্ডিওলজিস্ট, বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট, আইএলএস হসপিটালস আগরতলা। তো আমরা হার্টের নানান সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলাম। দেখুন, হার্ট আমাদের শরীরের এমন একটা অর্গান যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আমরা চিন্তিত থাকি। আমরা সবাই চাই যে আমাদের হার্ট ভালো থাকবে, কিন্তু আমরা কতটুকু সেটার জন্যে প্রিকশন নিই যাতে আমার হার্ট ভালো থাকবে।
হার্টের ওপর যত রকম অত্যাচার করার তো আমরা করছি, ডাক্তারবাবু যেটা বলছিলেন যে অনেকগুলো কারণে একজন মানুষের হার্ট অ্যাটাক হতে পারে বা হার্টের সমস্যা হতে পারে, কিন্তু সেগুলো যদি আমরা দৈনন্দিন জীবনে ফলো না করি তাহলে একটা প্রকার সমস্যা হতে পারে। তো আপনাদের যদি হার্ট নিয়ে কোনো রকম তথ্য বা হার্টের কোনো সমস্যা নিয়ে, তাহলে কিন্তু আমাদের টিভি স্ক্রিনে কিন্তু আপনাদের ফোন নাম্বার রয়েছে, তো আপনারা সরাসরি ফোন করতে পারেন, আজ কথা বলতে পারেন ডॉक्टर हेमंत कुमार गर्ग के साथ। सर थोड़ा ये बताइए फूड हैबिट्स कैसा होना चाहिए जिन लोगों को हार्ट डिजीज है, या जैसे कि मान लीजिए डायबिटीज जिनका है तो उनका तो फूड हैबिट्स कैसे होता है, डायबिटिशियन डायबिटोलॉजिस्ट उनका ठीक करके देते हैं, मगर किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट अगर वीक है तो उनका फूड हैबिट्स कैसा होना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ऑयल कम लेना चाहिए। ऑयल की क्वांटिटी कम लेनी चाहिए। अब ऑयल कौन सा लें उस पर भी बड़ा वो है। जो ऑयल सर्दियों में नहीं जमते हैं, आपने देखा होगा देसी घी जम जाता है, पाम जो ऑयल सर्दियों में नहीं जमते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जो जम जाते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, जम जाते हैं वो अवॉइड करना हाँ, चाहिए। ओके। जो जम जाते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ओके। ऑलिव ऑयल देखा गया तो सबसे बेस्ट बोलते हैं, ओके, मतलब यूज करने के लिए। सरसों का तेल से जिनको पेस मेकर लगा है, जिनकी फैमिली में पेस मेकर है या जिनको पेस मेकर लगने की संभावना ज़्यादा है, उनको सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल, अच्छा। मस्टर्ड ऑयल आप देखिएगा गूगल पर देख लीजिए, मस्टर्ड ऑयल यूएसए में खाने के लिए बैन है। अच्छा। तो जिनकी फैमिली में पेस मेकर, उससे जो मस्टर्ड आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल इस साइड पेस मेकर सबसे ज़्यादा लगते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे तो मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा चलता हाँ, तो है। मस्टर्ड ऑयल जहाँ पे जिस रीजन में मस्टर्ड ऑयल का ज़्यादा सेवन होता है वहाँ पे पेस मेकर लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो गूगल पे देखिएगा मस्टर्ड ऑयल, मतलब यूएसए के अंदर आप खाने के लिए मतलब बैन ही है। ओके। तो स्पेशली ऐसे फैमिली के अंदर जहाँ पेस मेकर लगने की संभावना है, फैमिली में किसी को पेस मेकर लगा है, उनको तो खास कर नहीं खाना चाहिए मस्टर्ड ऑयल। ओके सर, मगर मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी मतलब व्हाइट ऑयल जो होते हैं, रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, हाँ, नहीं वो खा सकते आजकल हैं। राइस ब्रांड हाँ, ऑयल, वो सब खा सकते हैं। हाँ, वो सब खा सकते हैं। ओके। राइस ब्रांड तो मस्टर्ड हुआ ना? नहीं, राइस ब्रांड वो भी मस्टर्ड है, व्हाइट है तो। हाँ, जो भी है मस्टर्ड अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब नहीं, ब्रांड मतलब वो नहीं है, उसका नाम ही क्या राइस ब्रांड होता है, मतलब राइस से कुछ बना अच्छा होता अच्छा, है। पता नहीं वो ठीक है, फिर मगर मस्टर्ड को अवॉइड करना हाँ, चाहिए। मस्टर्ड को जिनमें पेस मेकर का हिस्ट्री हो। कोकोनट डेंजरस है। कोकोनट ऑयल भी कोकोनट अब सर्दियों में जम जाता है, जम जाता कोकोनट, है, वही। वो सब नहीं यूज करना चाहिए। ऑलिव ऑयल बेस्ट है। घी को अवॉइड करना, घी को अवॉइड करना चाहिए। बटर जम जाता है, बटर जम उसको जाता है, भी- उसको अवॉइड करना चाहिए। वो सर्दियों में जम जाता है, मोटा मोटी है, वो सैचुरेटेड फैट है वो। ओके। और सर जैसे कि मान लीजिए हमारे इस मतलब देश के इस प्रांत में हम लोग मछली बहुत खाते हैं। नहीं, मीट मछली बहुत बहुत अच्छी है, मछली खाना चाहिए। मछली का जो ऑयल है बहुत अच्छा रहता है, ओके। लेकिन मछली को बनाने में तेल बहुत लगता है। खाते हैं। ओके, उसको अगर फ्राई करते हैं तो बेटर है उसको माइक्रो ओवन में बना लें। ओके, आप चिकन खा सकते हैं, पर मटन और पॉर्क अवॉइड करना है बिल्कुल। रेड मीट है वो, रेड ओके। मीट को टोटली अवॉइड करना है। आप एग खा सकते हैं, एग में येलो पोर्शन नहीं लेना है। वाइट पोर्शन खाइए, वाइट पूरा प्रोटीन है। येलो पोर्शन को अवॉइड करिए, येलो पूरा कोलेस्ट्रॉल है। ओके। मतलब जो टंग के लिए जो टेस्ट है सर, आप वो सब कुछ मतलब उसको छोड़ना पड़ेगा। ना ना, ऐसा नहीं बोल रहा। जैसे कि हम लोग बंगाली हैं, मतलब देश के इस प्रांत में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नहीं तो नॉर्थ फिश ईस्ट में खाइए ना, फिश। मस्टर्ड ऑयल आप जो कह रहे हैं, मतलब एक के बीच नहीं, वाला- मस्टर्ड ऑयल सर मैं उनको बताया जिनकी फैमिली में पेस मेकर का हिस्ट्री है, या जिनको ओके। संभावना, कई बोलते हैं डॉक्टर्स की इसको पेस मेकर लगने की संभावना ज़्यादा है इस चीज़ देख के, तो ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए मस्टर्ड ऑयल। राइट सर, अपार्ट फ्रॉम दिस वन हार्ट अटैक, कभी कभी हम सुनते हैं किसी का वाल्व खराब हो जाता है, और ये छोटे बच्चे में भी सुनाई देता है। सर ये प्रॉब्लम क्या है सर? बेसिकली हार्ट में 4 वाल्व रहते हैं, रोटिक, माइट्रल, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वाल्व। तो जन्मजात भी कई बार वाल्व बंद रहता है, और कभी कभी रोमेटिक फीवर होता होगा। ये जनरली 10 से 12 साल की उम्र में होता है। घुटनों में दर्द के साथ, सूजन के साथ वाल्व को डैमेज करता है। अच्छा, अगर वाल्व बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उसका ऑपरेशन वाल्व सर्जरी करके होता है। फिर ओके, वो सीरियल इको वाइज से पता चल जाता है कि आपका वाल्व कितना डैमेज है। अगर वाल्व ज़्यादा डैमेज है तो सर्जरी, नहीं तो मेडिसिन ही चलेगा उसका। ओके सर, आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में बोल रहे थे, ट्राइग्लिसराइड के बारे में बोल रहे थे, तो ट्राइग्लिसराइड अभी तो हमने एलडीएल की बात किया है हाँ, आपको, ये सब मैंने तेल का बताया है, सिर्फ एलडीएल है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड का तेल से कोई संबंध नहीं है। ट्राइग्लिसराइड टोटली कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। ओके, कार्बोहाइड्रेट, ओके, जैसे कि चावल हो गया। चावल, इस एरिया में मैं देख रहा हूँ चावल खाने का तरीका गलत है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि हम चावल नहीं खा सकते, हमें तो डायबिटीज़ है। रोटी खाते हैं। अब मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कभी साउथ गए हैं? चेन्नई में रोटी मिलती ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई डायबिटीज़ होगा तो क्या करेगा? ओके,
वर्ल्ड के 2/3 पोर्शन में चावल मिलता है। रोटी तो सिर्फ, गेहूं तो सिर्फ आपका 1/3 पॉपुलेशन खाता है वर्ल्ड का। बेसिकली चावल खाने का तरीका गलत है। सर ये तरीका, सही तरीका जानेंगे आपसे। हमारे एक दोस्त हैं हमारे साथ, फोन पे कोई है, देखिए। চলুন দেখি কে আছেন এবার। হ্যালো हेलो। हाँ नमस्कार, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? हाँ जी। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? 2 महीने की बच्ची है। हेलो। हाँ 2 महीने की बच्ची, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, उसकी पल्स रेट ज्यादा है, वो तो हार्ट में सोजश हो रही है। सर जम्मू से बोल रहे हैं, राकेश बोल रहा हूँ जम्मू से। जम्मू से, ओके। जम्मू से 2 महीने की बच्ची, उसका पल्स रेट ज्यादा रहता है। हाँ जी। कितना रहता है? तो सर सोजश हो गई है सर उसको। क्या होगी? आप थोड़ा टीवी से थोड़ा दूर आइए और आप बोलिए कि हम लोग को पता चला कि 2 महीने की बच्ची है, उनका पल्स रेट ज्यादा है। 2 महीने की बच्ची है सर, उसका पल्स रेट ज्यादा आता है। कितना आता है अभी, कितना है? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सांस लेने में प्रॉब्लम तो उनका हो सकता है आप इकोकार्डियोग्राफी करवाइए। इकोकार्डियोग्राफी में क्या है? सर टेस्ट तो ठीक है सर, टेस्ट ठीक है। नहीं, इकोकार्डियोग्राफी में क्या है? इकोकार्डियोग्राफी सर अभी नहीं की उन्होंने। इकोकार्डियोग्राफी करवाए? अभी नहीं की है इको। हाँ तो आप इकोकार्डियोग्राफी करवाइए। आप थोड़ा एक बार इकोकार्डियोग्राफी करवा लीजिए, उससे शायद पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, साथ रहिए आप, साथ रहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग, साथ रहिए। सर हाँ आप कह रहे थे सर, ट्राइग्लिसराइड कुछ अलग है। ट्राइग्लिसराइड, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड का संबंध तेल से नहीं है, ट्राइग्लिसराइड का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है। अच्छा, तो जो भी चीज हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, मतलब एक आप कह रहे थे कि चावल खाने का तरीका हाँ गलत है। वही मैं बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट, हर फूड का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अच्छा, मतलब आपने कोई फूड खाया तो बॉडी में उसके तुरंत बाद कितना शुगर लेवल बढ़ेगा, ओके, उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है फूड का, तो आपका, अगर ऐसा फूड ज्यादा खा रहे हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, तो आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में। अच्छा, तो कई पेशेंट आके बोलते हैं मेरा ट्राइग्लिसराइड, मैंने तेल बंद कर दिया है, मेरा ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो तेल का ट्राइग्लिसराइड से कोई रिलेशन है ही नहीं। ट्राइग्लिसराइड का रिलेशन है कार्बोहाइड्रेट से। ओके, तो हमें ऐसे फूड कम खाने चाहिए जिससे बॉडी में तुरंत शुगर लेवल बढ़े। अच्छा, जिनका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है उनको जूस नहीं खाना चाहिए, ओके, फ्रूट खा लें, क्योंकि जूस खाने से क्या होगा, बॉडी में तुरंत शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, जूस नहीं पिए, फ्रूट्स खा लें, आलू जैसी चीजें मत खाएं। अच्छा, ठीक है। और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। एक पोर्शन आप चावल लें, एक पोर्शन गाढ़ा दाल लें, एक पोर्शन सब्जी लें। अच्छा, आप देखें पेशेंट को खिचड़ी खिलाया जाता है, खिचड़ी भी किसका बना है? चावल का बना है। वो पेशेंट के लिए अच्छी चीज है, लेकिन चावल खा रहे हैं वो खराब चीज है। अच्छा, तो चावल खाने का तरीका गलत है। आपको चावल में सब्जी और दाल, गाढ़ा दाल मिला के खाना चाहिए। जनरली मैं देखता नहीं हूँ यहाँ पे, जनरली चावल को पतला दाल मिला के खा लेते हैं। हाँ तो व्हाइट राइस, वो तो राइस ही तो होता है जो पेट भरता है सब। नहीं वो ठीक है, वो गलत है। हाँ तो आप एक पोर्शन चावल लें, एक पोर्शन गाढ़ा दाल लें, एक पोर्शन सब्जी लें, मतलब मिला के खाएं। मतलब जितना चावल लिया उसका 3 पार्ट करके दाल और उसमें सब्जी मिक्स कर। हाँ मतलब 1/3 चावल लें, 1/3 सब्जी लें, 1/3 गाढ़ा दाल लें। सही बात। तो वो तरीका है सही खाने का। जनरली यहाँ पर मैंने देखा हूँ कि चावल में पतला दाल का पानी मिला के खा जाते हैं। ঠিক দর্শক বন্ধুরা, আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা, একটা মিসকনসেপ্ট আমাদের মধ্যে ছিল, যেটা আছে ডাক্তারবাবু ক্লিয়ার করলেন। ট্রাইগ্লিসারাইড অনেকেই ভাবেন যে তেল বেশি খেলে, ভাজা বা যেটার মধ্যে অয়েলি ফুডস, তেল খেলে বেশি হয়। ডাক্তারবাবু যেটা বলছেন স্টার্চ, মানে যেগুলো আমরা কার্বোহাইড্রেট, যেটার মধ্যে যেরকম ভাত, আলু, এগুলো খেলে হয়। আর আমরা যেভাবে ভাত খাই, অনেকটা পরিমাণ চাল বা ভাত নিয়ে বসি আমরা থালায়, আর তারপর হয়তো পাতলা ডাল দিয়ে, একদম জলের মতো ডাল দিয়ে মেখে পুরোটা ভাত খেয়ে নিলাম, পেট ভরে গেল, সেটা কিন্তু ভুল। হতো ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেলটা বাড়ছে। আমাদের করতে হবে কি, ডাক্তারবাবু যেটা বলছেন যে যতটুকু পরিমাণ ভাত নিচ্ছি সেটাকে 3 ভাগের 1 ভাগ ভাত নিতে হবে, 1 ভাগ পরিমাণ সবজি নিতে হবে, 1 ভাগ ডাল নিতে হবে, ঘন ডাল। তাহলে সবটা মিশিয়ে তারপর যখন আমি খাবো তাহলে কিন্তু আমাদের এটা ব্যালেন্সড ডায়েট হবে। सब्जी में दाल, आलू काउंट नहीं होगा ना। अच्छा, सब्जी में आलू नहीं होना चाहिए। आलू ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा फिर उससे। अच्छा ठीक है, आलू मतलब अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है तो। ओके, ट्राइग्लिसराइड के लिए आलू अवॉइड। और कार्बोहाइड्रेट मतलब आलू तो पूरा कार्बोहाइड्रेट है, पूरा कार्बोहाइड्रेट, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट चीज है वो अवॉइड। और सर कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या क्या ऑयली फूड्स है? हाँ, ऑयली फूड बताया। और मैंने आपने उसमें देखिएगा, आप कोई भी बाहर की चीज खरीदते हैं तो उसमें आप पैक्ड आइटम में आप सैचुरेटेड फैट देख लीजिए, सैचुरेटेड फैट है कि नहीं।
सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ नहीं खाना है। ओके, और दूसरा, अगर कोई तेल गर्म करके ठंडा होता है अच्छा, तो वो जहर बन गया है, मान के चलिए। मतलब पुराना तेल। पुराना तेल, जिस तरह आपने पूरी तला घर पे, ठंडा वो हो रख गया, दिया। हाँ, ठंडा हो गया, फिर क्या होगा, उसको यूज करेंगे। ठीक। तो एक बार गर्म हो गया, जो ठंडा हो गया है वो बहुत डेंजरस हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि बाहर का जो जंक फूड्स हाँ, होते हैं जंक वो फूड, तो बार बार हाँ, बार बार जो, हाँ, बार बार आप बाहर, जैसे आप समोसे, आप कितना ही अच्छा तेल इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, तो वो बिल्कुल डेंजरस है। ओके सर, और क्या क्या खाना है, मतलब खाने वाले क्या क्या चीज हमको अवॉइड करना चाहिए किसी का अगर उनका हार्ट अच्छा रखना है तो? हाँ, तो बस यही सब फूड मैंने आपको बता तो दिया ऑयली है। फूड्स, क्योंकि जब भी हार्ट के बारे में आते हैं सर, कुछ मेडिसिन होते हैं जो लेने से हार्ट खराब होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ज्यादा एक्सेसिव अगर एंटीबायोटिक्स, पेन नहीं, किलर, एंटीबायोटिक से Sleeping pills? पेन किलर जो ज्यादा है, ओके, पेन किलर खाने से डेफिनेटली, अगर लंबे समय तक पेन किलर लिया जाए ओके, तो हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होना और स्पेशली किडनी डैमेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। पैरासीटामोल और स्लीपिंग पैरासिटामोल सेफ है। ओके, स्लीपिंग पिल लेने से हार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। स्लीपिंग पिल, स्लीपिंग पिल आप ले सकते हैं, उसमें हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, मतलब ऐसे नॉर्मल जो मेडिसिन जो लोग लेते हैं उसमें से अगर एक्सेसिव ना हो तो हाँ, पेन किलर के अलावा हाँ, बिल्कुल। तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायबिटीज है, अगर किसी को हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज से बचना है, तो डायबिटीज में शुगर कंट्रोल करके रखना है। फास्टिंग शुगर आपका 100 से 110 और खाना खाने के बाद मैक्सिमम 160 टू 170। ओके सर, ये जो बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था, कोविड के चलते, ये पैंडेमिक अभी भी चल रहा है और अभी और एक वेव आने वाला है सर, सुन रहे हैं मतलब। सो जिनको कोविड हुआ था, जिनको अगर मैसिव जो हॉस्पिटलाइज थे, तो उनको क्या क्या, मतलब उनका हार्ट के लिए क्या क्या अभी सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए सर उनको? देखिए, वो डिपेंड करता है, अगर कोई कोविड पेशेंट था, उसका अगर लंग्स में डैमेज नहीं हुआ है तो नॉर्मल पेशेंट की तरह बिहेव है। अगर उनको लंग्स में डैमेज है तो हार्ट पे ज़्यादा दबाव पड़ता है। कभी कभी कोविड पेशेंट का देखा गया है, उनको पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसके कम से कम 6-8 महीने तक, मैंने बहुत देखा है पेशेंटों को, तो उनको अचानक से दिल का धड़कन बढ़ जाता है, अचानक से फिर दिल का धड़कन कम हो जाता है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ हार्ट रेट बहुत ज़्यादा नोटिस किया है मैंने कोविड पेशेंट्स का। तो अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो फिर डॉक्टर का सलाह लें। ठीक सर, कुछ रैपिड, अभी समय कुछ ज़्यादा है नहीं, 4-5 मिनट है हमारे साथ, कुछ रैपिड आपसे मतलब चुनेंगे। ओबेस जो लोग हैं, जो थोड़ा मोटे होते हैं जो, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम होना मतलब रिस्क फैक्टर कितना है सर? मैंने जैसे आपको बताया, एक BMI इंडेक्स रहता है। BMI इंडेक्स अगर आपका 25 से ज़्यादा है, अगर ओबेसिटी है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। दूसरा, अगर BMI इंडेक्स आपका नॉर्मल भी है, BMI इंडेक्स क्या होगा सर? बॉडी मास इंडेक्स, अच्छा, बॉडी मास इंडेक्स है, हाइट के हिसाब से बॉडी का वेट कितना होना चाहिए। अगर 25 से ज़्यादा है तो ओबेसिटी कैटेगरी में आता है, उनका चांस ज़्यादा है। अगर पूरी बॉडी ओबेस है तो इतना डेंजरस नहीं है। स्पेशली अब्डोमिनल ओबेसिटी, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर किसी का BMI ठीक भी है लेकिन सिर्फ अब्डोमिनल ओबेसिटी है तो बहुत डेंजरस है। तो कम से कम अब्डोमिनल ओबेसिटी को ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। पेट वाला? पेट, हाँ, पेट सर, वाला। एक्सरसाइज के अलावा और कुछ करें लोग इसको कम? अगर किसी को अब्डोमिनल ओबेसिटी है तो उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल डेफिनेटली ज़्यादा होगा। ओके, आप टेस्ट किसी का भी अब्डोमिनल ओबेसिटी है, उसका ट्राइग्लिसराइड करवा लीजिए, उसका ज़्यादा ही मिलेगा। मगर इसको कम कैसे करें सर? तो ट्राइग्लिसराइड का तरीका मैंने आपको बता दिया, ट्राइग्लिसराइड वो करना है और एक्सरसाइज कम हो जाएगा। जाएगा। ओके, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल होते हैं, टीनेजर में भी होते हैं, एडोलेसेंट में भी और बड़ों में भी, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं टेबल में बैठ के, तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज तो करते नहीं, तो उनका हार्ट प्रॉब्लम होने का चांसेस कितना है सर? देखिए, एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। अगर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, घर में अगर सीढ़ियाँ हैं तो 5 बार ऊपर नीचे कर लें, उससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। ओके, ये हार्ट के लिए एक्सरसाइज हो? किसी के लिए, मतलब एरोबिक एक्सरसाइज तो बेस्ट है। आपको कम से कम सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट कम से कम तेजी से चलना चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। ओके, जो लोग जंक फूड्स या फास्ट फूड्स पे डिपेंडेंट ज्यादा है सर आजकल, उनका कितना रिस्क है? देखिए, जंक फूड में मैंने आपको बताया, जंक फूड में जनरली जितना भी रैपर्स वगैरह देखिएगा, उसमें सब देखिएगा पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। इंडिया भी इतना एक्सपोर्ट करता है पाम ऑयल का, नहीं सॉरी इंपोर्ट करता है ना। तो जितना भी जंक फूड मार्केट में मिलता है जनरली पाम ऑयल का बना हुआ है। पाम ऑयल में जम जाता है मतलब। हाँ, तो स्पेशली जंक फूड आप खरीद रहे हैं तो देख लीजिए सैचुरेटेड फैट है या नहीं। अगर किसी को जंक फूड बनाए तो घर में बना सकते हैं अच्छे तेल में। ठीक, और टेस्टी फूड थोड़ा अवॉइड करना है। ओके सर, जिनका डिप्रेशन है और जो लोग बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हैं काम को लेके, फैमिली को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, देखिए, स्ट्रेस भी एक तरह का हार्ट
अटैक का रिस्क फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ओके तो स्ट्रेस को तो अवॉइड करना ही चाहिए। स्ट्रेस इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है अबाउट डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ का। ओके। तो सर आजकल जो लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं, मतलब जो आसपास हो रहा है, तो लाइफ को कैसे हम, मतलब स्ट्रेस को कैसे हम अवॉइड करें? स्ट्रेस तो देखिए, स्ट्रेस तो हर ह्यूमन बीइंग का अलग अलग है। मेरे को लगता है स्ट्रेस तो उसकी जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स ही सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और एक्सरसाइज करने से भी स्ट्रेस कम होता है, और योगा, मेडिटेशन। ঠিক। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা শুনছেন ডাক্তারবাবু কি বলছেন, ডক্টর হেমন্ত গার্গ। দেখুন, হার্ট অ্যাটাক হলে ডাক্তারবাবু অপারেশন করছেন, হাজার হাজার অপারেশন ডাক্তারবাবু করে নিয়েছেন ওনার জীবনে, আরও করবেন অনেক। আর হার্টের কোনো সমস্যা হলে আমরা ছুটে যাচ্ছি ডাক্তারবাবুদের কাছে, কিন্তু এই যে ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলো আমাদের জীবনে যেগুলো হয় সেগুলো কিন্তু ফলো করতে হবে। সেগুলো আমরা ইচ্ছে করলে কিন্তু আমাদের নিজেরাও ভালো থাকতে পারি, আশপাশের লোকদেরও ভালো রাখতে পারি। ডাক্তারবাবু যেটা বলছিলেন কীভাবে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট করব, অনেকেই আছেন পরিবারে যারা হয়তো টেনশন করছেন কাজ নিয়ে, পরিবার নিয়ে, কি করে পরিবারের অন্যরা ওনাকে একটু ভালো রাখতে পারেন। আপনারাই কিন্তু পারেন ওনাকে স্ট্রেস থেকে রিলিফ দিতে। আর যত স্ট্রেস থেকে উনি রিলিফ থাকবেন, ওনার ডায়াবেটিস হওয়ার চান্সেস কমে যাবে, হার্ট ওনার ভালো থাকবে। सर, पीपल सफरिंग फ्रॉम एस्मा एंड सीओपीडी, उन लोगों का चांसेस कितना है सर? देखिए, अस्थमा सीओपीडी से डायरेक्ट चांस नहीं है हार्ट अटैक होगा। Okay. लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो अगर किसी को अस्थमा है तो उसको सीवियरिटी ज़्यादा होगा। अच्छा, ओके। क्योंकि अल्टीमेट पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन देना है वो तो लंग्स और हार्ट को मिलके देना है। अगर मान लो आपका हार्ट अटैक हुआ, ओके, जिसको भी अस्थमा है, क्योंकि लंग्स उतना पूरा काम नहीं कर रहा है, ठीक। तो हार्ट पे ज़्यादा दबाव है, हम्म, तो अगर उसको हार्ट अटैक होगा तो हार्ट अटैक की सीवियरिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा हो जाएंगे। ओके। जिनका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है सर, इरेगुलर हैबिट्स उनका है, ठीक समय पे खाते नहीं है, ठीक समय सोते नहीं है, उनका चांसेस कितना है सर हार्ट का, उनका प्रॉब्लम होने में? देखिए, इरेगुलर हैबिट्स में सारी चीज़ आ गई हैं, मतलब खाना ठीक, जंक फूड नहीं खा रहा है, लेक ऑफ स्लीप, या अगर स्लीप कम करते हैं तो उसमें स्ट्रेस हार्मोन, अगर स्लीप साइकिल ठीक नहीं है तो आपको स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं। तो इटसेल्फ ये सारे रिस्क फैक्टर ही हर डिजीज़ के हैं। ओके सर, जैसे आजकल तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है वर्क फ्रॉम होम, तो 10 घंटा 12 घंटा लोग एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप में बैठे रहते हैं या मोबाइल पे काम करते रहते हैं। ये बच्चों को भी हम लोगों ने देखा है कि 3-4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा क्लास करते हुए। सो हार्ट का उनके साथ कोई, इस टाइप ऑफ पीपल के साथ कोई नहीं, relation? हार्ट का देखिए, अब इसमें अगर आपका वेट गेन हो जा रहा है, आप काम तो आप ऑफिस में चाहे काम करें, ऑफिस में भी अगर कोई आईटी प्रोफेशनल है, ऑफिस में भी 10-12 घंटे बैठे ही रहता है। ओके। लेकिन आप इसके साथ अगर अपना वेट बढ़ने दें, क्योंकि वेट बढ़ जा रहा है, जितने ऑफिस में बार बार खाते नहीं है, घर में खा रहे थे, मतलब आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक। और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। सर, जो लोग ड्रग एडिक्टेड हैं, अल्कोहलिक हैं, या आप तो स्मोकिंग के बारे में तो बोल चुके हैं, तो जो ड्रग एडिक्ट हैं और जो अल्कोहलिक है उनका, देखिए, अल्कोहल का अगर मान लो किसी को हार्ट डिजीज नहीं है तो अल्कोहल का डायरेक्ट हार्ट पे ज्यादा रिलेशन नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर किसी को हार्ट डिजीज हो गई है तो उसको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अल्कोहल जिसको हार्ट डिजीज नहीं है वो कम मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अल्कोहल के साथ बाकी चीजें खराब हो जाती हैं। अल्कोहल जब लेता है उसका स्नैक्स उल्टा पुल्टा हो जाता है, अल्कोहल जब स्टार्ट होता है तो स्मोकिंग हो जाता है। ओके। तो अल्कोहल का डायरेक्ट इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, लेकिन अल्कोहल के साथ जो एसोसिएटेड जो माहौल बन जाता है वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। ओके सर, बहुत कुछ तो जानना था आपसे, अगर आज हम लोग का टाइम मतलब ख़त्म है ऑलमोस्ट, तो जाते जाते सर 1 मिनट आपके पास हार्ट को अच्छा रखने के लिए सबको क्या करना चाहिए सर? अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कंट्रोल करके रखिए और चलिए, पैदल चलिए, मतलब कम से कम आधा घंटा डेली 7 के 7 दिन तेजी से चलिए। एक्सरसाइज बेस्ट तरीका है, खाने पीने में परहेज करिए। ओके, बस यही, इसी की खुशहाल जिंदगी रहिए, बस स्ट्रेस फ्री रहिए बस। ओके, थैंक यू सो मच सर आज आने के लिए। तो आप तो बहुत बिजी रहते हैं, तो मौका मिलेगा तो एक दिन और चाहेंगे आपको हमारे स्टूडियो में। आज के लिए बहुत शुक्रिया सर। হার্টকে ভালো রাখার জন্য আজ ডাক্তারবাবু যেটা বললেন সবগুলো সবাই মেনে চলবেন। দেখা হবে আপনাদের সাথে আগামী বৃহস্পতিবার আবারও। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।